हूँ मास कॉम डिपार्टमेंट की ओर से, और आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। मीडिया सेंटर की वर्किंग आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। बाकायदा जो 4-5 मीडियम है, सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, रेडियो है, प्रिंट है, उसके लिए हमने टीम बना ली है और वो आज से अपना काम शुरू कर देंगी। और मेरे ख्याल से पहला वीकली अखबार हम इस हफ्ते, बल्कि जो 9 तारीख को हम एक बड़ा कार्यक्रम इस डिपार्टमेंट में आयोजित करने जा रहे हैं, उसमें उसको लॉन्च करेंगे वीकली न्यूज़पेपर, और मीडिया सेंटर के विधिवत उद्घाटन की भी योजना है इसी के। तो एक नई शुरुआत, एक नए दिशा में हम लोग बढ़ना चाहते हैं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि आप लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो हमने पूरे क्यूरिकुलम को भी ऊपर भी रिवर्क किया है। और अब हम जिस अंदाज में पढ़ाई करने जा रहे हैं वो भी अलग होगा, और साथ में डेली बेसिस पर 1-2 पीरियड हमने प्रैक्टिकल के लिए तय कर दिए हैं। सेकेंड हाफ में पूरा समय बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, एंकरिंग करेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, जो भी सोशल मीडिया से जुड़ी एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक मुझे लगता है कि बच्चों को भी एक नए तरीके से सीखने और पढ़ने का एक अवसर मिलने वाला है। Thank you very much, Professor Mukesh. It's really heartening to know that subject something like mass comm. I just listened these 2 words without finding out what is the translation for this. Today only I come to know that there are so many things in this. I just knew that there is something like to write a news and then send it somewhere. Somebody will edit, gets published, you read and then you throw it away. That's it. But I come to know that there is so much practical work which they are planning to impart from the new year. So let's hope this new year comes as a blessing to us, and with this blessing I wish you all a very, very happy new year. And as he told that I'm busy, I'm least busy man in this university. I don't actually have any work. I go on trying to find work. As soon as he said that we are starting this on the new day, I said I must come, and that's why I'm here. And this is no sort of giving anything from my side if I come here. In fact, I learn a lot when I come here. I come to know what happens in the university, what happens in mass comm. And I find you all to be very fortunate to be in a university where your faculty is so much bothered. They are so much concerned that you just don't have a degree. When you go out, you are a fruitful person, you are well employed, and you are honored wherever you go. And with that, even Professor Sergio with us, I would like to attend her classes sometimes. She is going to really change our language, which I think in your field will be very important, because when you talk on TV, people listen very carefully where you commit mistakes in your pronunciation, in your words. And I also need to learn, and you're fortunate to have her with us. She's going to groom us in these issues, which will be very much part of your department. And Mr. N.K. Singh is joined with us in this field. And with his blessings, all this what you have listened just now, it's all with his blessings, his ideas, which your department is going to put into black and white and in words and in practice. And with him being here, I think you will be placed wherever you want to go. He will be a great guide to us. He will be able to teach us as well how to enter into these fields and go to the heights. With these words, I wish you again a very bright future here in this university, and again a very happy new year to all of you. Thank you very much. थैंक यू सर। जैसा कि ऋषि साहब ने संकेतों में कह दिया है कि डॉक्टर सरजू हमारे डिपार्टमेंट से जुड़ने जा रही हैं। जुड़ने का मतलब है कि लैंग्वेज डिपार्टमेंट हमसे जुड़ रहा है
और बाकायदा अब हम अपने क्यूरिकुलम में, हमारे सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज हिस्सा होगी और डॉक्टर सरजू का डिपार्टमेंट उसको देखेगा। बाकायदा क्लासेस होंगी, प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, थ्योरी की क्लासेस होंगी। और एक जर्नलिस्ट का क्या है, सबसे बड़ा हथियार तो उसकी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। अगर लैंग्वेज आपके पास अच्छी है, धारदार है, तो आप प्रिंट हो, टेलीविज़न हो, किसी भी माध्यम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं अब डॉक्टर सहजू से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और इस जो नई शुरुआत होने जा रही है नए साल में लैंग्वेज के क्षेत्र में, उसके बारे में बताएं। थैंक्स। Thank you. Very warm welcome, very good morning and Happy New Year to everyone present here. Our dynamic Vice Chancellor, Dr. Shamlal Singla, Advisor N.K. Singh, and your very dynamic Dean, Dr. Mukesh. All this effort we are going to put for the students of our university and especially for mass communication, because language plays a very important role in your career. And why English? A big question mark. Why not Hindi? Of course, Hindi is our national language. We will pay equal attention, but English is the lingua franca. It's a common language. Wherever you go, any kind of interview you want to crack, it's in English. Once you join your workforce, you may be asked to speak in Hindi, you can communicate in Hindi, but getting there, you need English. And the thought process started recently when our advisor and our vice chancellor wanted to see what we can do for our students to improve their communication skills. Then they are kind enough to visit the lab, language lab we have in the engineering building. They checked the software we have there, and they wanted similar things happening for the rest of the university students in other buildings. So paramedical building, we have identified one room for all of you. So we will going to set up a language lab with software from Wordsworth, where you can practice your communication skills, language and vocab building, all those things. So very soon we'll start those classes. Theory classes will also be there to build up your vocabulary and all. I'm here to brief you about what we plan for you. So rigorous English language practice. How do we pick up language? From childhood, by listening to what our parents and family members speak, and later on we develop by interacting with others. But how many of you actually speak in English at home? If you ask your mom, Mom, can I have a glass of water? She may look at you very strangely, but amongst yourself you can practice in English, you can speak in English. So why we wanted to have language classes for all of you is to make you practice this particular language called English. You can learn it as a foreign language, you can learn it as a second language. We should be proud being Indians because we are all multilingual. How many of you can speak 2 languages in this classroom? In this 2, that means your mother tongue, Hindi, 2. Minimum 2 everybody knows. 3, then add on. So many. We are all multilinguals. Remember that. And English is not a giant, difficult to capture. ऐसा नहीं है. You can. I am not very good in Hindi because my language doesn't have certain sounds like sh, long sh. For me, shanti would be santi. Fish would be fish. So a lot of things, but I tried my level best to improve upon by interacting with others and correcting myself every now and then. So it's not that, please do not discourage any of your friends if they speak with a different accent, because all of us have mother tongue influence. So please do not discourage any of your batchmate or anybody who speaks to you with a different accent. Understanding is important. So communication is all about conveying what you wish to in a proper manner. But you have to be careful what you say, where you say, how you say. If you know how to balance this, it's a smooth sailing. And confidence is one. If you have confidence, yes, I can do it. I'll be able to improve my English and can speak confidently.
the effort should be from within. Initiation should start from within. The rest will take care of. I'll extend my hand, and I wanted you to extend your hand so that we can walk together. If that is a promise you can give me, we'll make things work. Okay, thank you so much and have a wonderful year ahead. Thank you so much. थैंक यू मैम। देखिए, हम लोग अगर सिलेबस तक सीमित रहें तो कभी भी हम प्रोफेशनल करियर में सक्सेसफुल नहीं होंगे, और इसीलिए सिलेबस की पढ़ाई करनी होगी तो वो हम 1-1.5 महीने में कोर्स पूरा कर सकते हैं और फुर्सत पा सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि SGT यूनिवर्सिटी से जब आप पास होकर बाहर जाएं तो आप पूरी तरह से तैयार हों। जो भी भूमिका आपको वहाँ मिले, रिपोर्टर, एंकर, डेस्क पर कहीं भी, आप उसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकें। इसीलिए ये एक नया डायमेंशन लैंग्वेज का हमने इस पर ऐड किया है, और मीडिया सेंटर हर तरह से आपको तैयार करने की एक कोशिश है। अब मैं NK सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और हमें हमारा मार्गदर्शन करें। नववर्ष की शुभकामनाएं। ये जिंदगी 2091 के सेंसस के हिसाब से एक चीज होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हमारी 64.5 है। जब आज़ादी मिली थी तो हम बमुश्किल तमाम 42 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। अच्छे हेल्थ वगैरह की वजह से, विद गुड फूड इंटेक, it has come to 65.4%, 64.5%, or 65.4%, 4 years। 65 साल की जिंदगी या 70 साल की जिंदगी, जापान में ये 86 साल है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता रहेगा, तो मैं मानूंगा कि आज का जो बच्चा है वो 80 साल जीता है। वैसे 80 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते, आज एक उसमें से कम हो गया है। ये कम होना, कभी जरा सा पलट के सोचिए, हैव यू लिव्ड अप टू योर एक्सपेक्टेशंस? हैव यू रियली डन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू? हैव यू चेंज्ड द क्वालिटी ऑफ पर्सन इन यू, द क्वालिटी ऑफ सेल्फ दैट यू हैड इन यू? डिड यू ट्राई टू चेंज दैट? And could you accomplish that? कभी गौर से सोचिए तो लगता है कि ऐसे ही 22 साल, 24 साल, 60 साल बीतते जाएंगे और हम हो सकता है कि जो मकाम हासिल करना था इस दुनिया में वो ना कर पाए। तो आज नया साल है, नए साल में हम लोग पहले दिन मिल रहे हैं। क्यों ना एक रिजॉल्व दिया जाए, एक डिटर्मिनेशन से शुरू किया जाए कि हम अपने को बदलेंगे। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट आई हैव इनकलकेटेड इन मी, with the value system that I have inculcated in me, couldn't we strive to change it, bring it to a different zenith, a different trajectory, take a different trajectory to achieve this goal? इस रिजॉल्व के साथ अगर चलेंगे तो जिस प्रोफेशन में आप हैं, दिस ऑफर्स यू इन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो हम लोग एक दिन बैठ के सोच रहे थे व्हाट एग्जैक्टली शुड बी डन टू सी दैट यू आर ए प्रोफेशनल। व्हेन यू गो आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, you are a complete professional, so that anybody taking your interview would say instantly, नहीं ये तो सब जानता है, why don't we take it? तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ बनाई हैं, जैसे कि आपको एंकरिंग, रोज एक बुलेटिन निकालेंगे जो कि यूनिवर्सिटी के 5 बिल्डिंग्स में वो किया जाएगा, LCD के थ्रू दिखाया जाएगा। हमारा एंकर होगा, हमारे रिपोर्टर्स होंगे, वो PTC करेंगे, तमाम जो फैकल्टीज हैं उनकी इवेंट्स को रिपोर्ट करेंगे डेस्क पे बैठा, और ये चेंज होता रहे, रोटेटरी प्रोसेस में होगा। ए पर्सन हु इज एंकरिंग टुडे माइट एज वेल बिकम रिपोर्टर टुमारो, फॉर अनदर वीक ही विल बी अ रिपोर्टर।
That is how we will try to rotate this entire structure. और ये करके हम आपको रिपोर्टिंग की बेसिक्स सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये मीडिया सेंटर का काम करेंगे, जो कि 9 तारीख को हम इसका आगाज करेंगे। और वैसे शुरुआत तो आज ही से हो जाएगी, लेकिन फॉर्मल इसको हम 9 तारीख से करने की सोच रहे हैं। और इसमें हम वो सारे रिपोर्टिंग सिखाएंगे। और जब ये हम कर लेंगे तो एन एक्सटेंशन ऑफ इट विल बी, आपको हम दिल्ली भेजें, गुड़गांव भेजें, बाहर भेजें। एक बड़ा कवरेज है। मान लीजिए मुलायम सिंह के यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वी माइट एज वेल सेंड अ रिपोर्टर कि तुम वहां से रिपोर्ट करो, हम यहाँ दिखाते हैं। और वो हम स्काइप के थ्रू या इस तरह से कोई कनेक्टिविटी देके, इस तरह का प्लान है। आने वाले दिनों में एक लंबा चौड़ा प्लान है। नया साल है, एक दिल पे हाथ रख के आप लोग सोचिए कि ये देश बदल रहा है। आपको अंदाजा नहीं होगा जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ्स को चेंज किया है। हमारे जीडीपी का बड़ा पोर्शन जो आता है 58% दैट कम्स फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर, व्हिच इज इनटेंजिबल, व्हिच यू कांट सी। एक पूछिए जाके सॉफ्टवेयर की कंपनी एक्सेंचर में कि भाई आज तुम्हारे यहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ, तो कहेगा 3 करोड़ या 300 करोड़ का हुआ आज हमारे यहाँ बिजनेस हुआ। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितने किलोग्राम हुआ, तो कहेगा अरे साहब क्या मजाक करते हैं, हमारे किलोग्राम में नहीं होता। आज से 20 साल पहले टाटा के यहाँ जब आप पूछते या आज भी पूछेंगे, तो टाटा बोलेंगे कि हमारे यहाँ 4000 गाड़ियां रोज रोल आउट ऑफ असेंबली लाइन। तो टेंजिबल्स का प्रोडक्शन बंद हो गया है, अब हम इनटेंजिबल्स पैदा करते हैं। और ये इनटेंजिबल्स एक बटन दबाते हैं, 5000 जगह उसका प्रोडक्शन हो जाता है, 5 जगह वो मैसेज चला जाता है। वी आर प्रोड्यूसिंग इनटेंजिबल्स एंड वी आर प्रोड्यूसिंग साइमल्टेनियसली, unlike the previous production process which was assembly line production and was sequential। यहाँ पे कार में पहिया लगेगा, यहाँ पे बोनट लगेगा, यहाँ पे स्टीयरिंग लगेगी, यहाँ पे डिफरेंशियल लगेगा, और कार will roll out of the assembly line। That was known as sequential mode of production। Now we have 2 changes। One is producing intangible and the mode is simultaneous, not sequential। इसकी वजह से सारे सोशल रिलेशंस बदल रहे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस बदल रहे हैं, पूरा ये समाज, पूरी दुनिया बदल रही है। ऐसे में आपको अपने को तैयार करना पड़ेगा नेक्स्ट 40 इयर्स जो आपका करियर है वो कैसा होगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा गहराई से, वैल्यू सिस्टम हमारे चेंज हो रहे हैं और हम वापस पुराने वैल्यूज पे आ रहे हैं। एक नैतिकता, वैल्यूज पे अपने को, उन पैरामीटर्स पे खड़ा होना, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपसे जब पूछा जाएगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज इस देश का प्रोडक्शन कितना है, प्राइमरी सेक्टर जो से एग्रीकल्चर कहते हैं उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना है। ये सारी चीजें, जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है, मुझे लगता है दुनिया में दिस यू डेराइव स्पिरिचुअल प्लेजर आउट ऑफ इट। आपकी एक रिपोर्ट से अगर देश का कानून बदल जाता है तो आपकी जिंदगी भर सीने में दबाए घूम सकते हैं कि मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी, ये कानून यहाँ का बदल गया। स्पिरिचुअल प्लेजर मिलता है। तो इस जिस प्रोफेशन में है आप, मैं यही इल्तिजा करूंगा आपसे कि इसको समझें, इसकी बारीकियों को, और अपने को बदलें। स्टूडेंट्स बहुत कम आए हैं, कल आप ये मैसेज दीजिएगा उनको कि अब इस प्रोफेशन में हम आए हैं तो हम इसको बदल के दिखाएंगे और एक नए रिजॉल्व के साथ इस साल हम लोग काम करें। मीडिया सेंटर में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी प्रोफेशनल स्किल्स एक्वायर करने का। तो मैं यही आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने को बदलें, एक बार बैठ के गहराई से सोचें। ये देश बदल रहा है, आपको उसके साथ चलना है, पूरी दुनिया का सिस्टम बदल रहा है। और अगर इसमें आपको, इफ यू वांट टू स्विम अशोर, इफ यू वांट टू स्विम अक्रॉस, you will have to change yourself, and maybe every minute, not by day. You have to change yourself not by day, but every moment। और ये जब जज्बा लेके आप चलेंगे तो शायद अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। देखिए बहुत बारीक चीज़ कही है उन्होंने
कि कोई भी परिवर्तन जो होता है शुरू वो दिमाग से होता है, और दिल और दिमाग जब एक जगह आ जाते हैं तो वो परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको पत्रकार बनना है तो पहले अपने दिमाग में आप ये तय कर लीजिए कि आप पत्रकार हैं, पत्रकार बन रहे हैं। एक हिंदी में कहते हैं कि पर काया प्रवेश होता है। जब आप कोई उपन्यास लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, तो आप उसके कैरेक्टर में बल्कि एक्टिंग करते हैं तब भी उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं, और तब आप वो फील करने लगते हैं उसके जैसा, और उसके क्या भावनाएं होंगी, क्या वो सोच रहा है, उसके बारे में लिखते हैं। तो जब आप एक पत्रकार की काया में प्रवेश करेंगे तो आप एक पत्रकार की तरह बिहेव करने लगेंगे। फिर ये नहीं होगा कि आज मुझे कॉलेज जाना है, क्लास में जाना है या नहीं जाना है, यूनिफॉर्म पहनना है या नहीं पहनना है, डिसिप्लिन क्या होता है। ये एक आपके तुरंत दिमाग में सेट कर जाएगा कि आपको अगर ये असाइनमेंट मिला है तो 11 बजे का टाइम अगर आपको किसी ने दिया है तो आपको 5 मिनट पहले ही वहाँ पहुँचना है, 5 मिनट बाद आप नहीं पहुँचेंगे। हमें ये इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाला, यहाँ आए, बच्चों को संबोधित किया। धन्यवाद आपका।